Good evening, guys. Warm welcome to everyone. So, this is the market outlook video for 13th January 2022, which is going to be Thursday and expiry of this week. So, let us talk about Nifty, Bank Nifty, and some of the IT stocks that have posted their results today, and what are the scenarios that can be expected in the markets for tomorrow. So, first of all, tomorrow's markets are going to be interesting because three major IT companies have posted their results today, and it will influence tomorrow's market opening. And just now, I have posted a good lesson for you all on our Instagram channel. So make sure that you follow us on Instagram. And this video is going to be based on that theme. The theme is that as a trader, you should believe in your analysis and not forecastings. Let me read out the data for you now. The data says that FI's net position in stock futures, index calls, and index puts have increased. Their net positions in index futures have reduced. FIs have made higher additions in index calls than index puts, which is good. Clients have made additions in index calls as well as index puts today. They have made higher additions in index puts, which shows that they are bearish. Pros have reduced positions in index calls and index puts both. They have reduced more index puts, which shows that they are bullish. Now, the conclusion is that the data is mild bullish and the market closing was also good today. FIs have sold around 1,000 crores of Indian shares today, and DIs have bought around 1,332 crores worth of shares today in the market. So the data of cash is also positive today. Let us talk about the equity trades that I've shared with you all. Today, I've shared with you Tata Communications, and it went well. Above 1540, I told you that any closing on any time frame above 1540 is a very positive sign for this stock. And as soon as it broke 1540, it touched 1585 in a zap. And some of our members were able to benefit from that and made some good money in intraday as well. Another stock that I have suggested to you a few days back, that was Apple India. It is going nice, and today again it has hit new 52-week highs. So all the equity trades, all the suggestions that I have posted on our free Telegram channel have been going good. That's great. Let's talk about Nifty and Bank Nifty first of all. So the data is good. Let's talk about the scenarios that can be expected tomorrow. तो कल का जो दिन है that will be influenced by IT stocks a lot because IT stocks कल की opening market की influence करेंगे. जो भी IT stocks ने अच्छे results दिए हैं and whatever good news that have come from them, like TCS have announced a record 18,000 crores worth of buyback at 4,500 rupees, which is a positive sign and likely that will give a gap up to the stock. So just because that high weightage stock in Nifty is going to give a good gap up, there are a good chance that markets can give a good gap up tomorrow. Let's talk about the global markets. US 100, 0.90% up, US 30, 0.31% up, and SGX Nifty above 18,300 levels. So right now we are getting a 100 points gap up on the markets tomorrow. Talking about the markets, as soon as they have broken 17,600, they are moving quite smooth. And अगर पिछले 2-3 वीक की बात करें तो markets have been moving smooth. यहाँ पे मैंने आपको एक accumulation zone बताया था, and since that accumulation zone have been holded by the markets, उस दिन के बाद से we are doing great, and today we have hit 18,200 levels on Nifty, and जिस टाइम का बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, now we are again near the all time highs on the markets. And this is what I told you on the Telegram also, key markets may don't panic, don't sell your long term stocks, because once again definitely we will go towards the new highs. Ab markets have approached this resistance of 18,200, sorry, and they are at a strong resistance. तो आज की जो closing है, it is wonderful because it happens to be near the levels of strong resistance. यहाँ पे एक high बना था on around, let me check, on around 15th November, यहाँ पे इस level के पास एक high बना था. So now we are trading at a 2-month high. मतलब कि जो पिछले 2 महीने पहले जो निफ्टी ने हाई हिट किया था, now we are at that level
and breaking that will definitely take us to the all-time highs of 18,600. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने अपने चार्ट पे मार्क कर दिया एंड नाउ वी आर मूविंग स्मूथ और कल अपन को गैप अप मिल सकता है जो कि अराउंड 18,300 के आसपास अपन को ओपनिंग बता रहा है मार्केट की. तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट मार्केट्स विल ओपन आउटसाइड टुडेज डे रेंज. अब आज की डे रेंज मैं आपको बता देता हूँ क्या थी मार्केट की. आज की डे रेंज है 18,128 से लेकर 18,227.95. ये 100 पॉइंट की रेंज है. 18,128, 18,228. अब अगर मार्केट इसके बाहर खुलता है तो दो अच्छे सेटअप अपन को देखने को मिल सकते हैं. या तो मार्केट बाहर खुलेगा, इट विल मेक अ ग्रीन कैंडल, फर्स्ट कैंडल विल बी ग्रीन, ठीक है. उसके बाद अगर कोई फॉलो अप नहीं आता और उस ग्रीन कैंडल का लो अपन तोड़ देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 15 मिनट चार्ट्स, देन इट विल गिव अस अ बुल ट्रैप सेटअप, ठीक है. या फिर ऐसा हो सकता है गैप अप खुलने के बाद आउटसाइड प्रीवियस डे रेंज वी मेक अ रेड कैंडल, और अगर वो रेड कैंडल का कोई फॉलो अप नहीं आता, इंस्टेड वी आर ब्रेकिंग द हाई ऑफ दैट रेड कैंडल, दैट विल गिव अस अ बियर ट्रैप सेटअप, तो अपन उसको ट्रेड कर सकते हैं. इसके अलावा दो सेटअप मिल सकते हैं. या तो आपको ग्रीन कैंडल का फॉलो अप मिल जाए तो देन टुमारो द मार्केट्स विल बी बाय ऑन डिप्स, एंड या फिर आपको रेड कैंडल का फॉलो अप मिल जाए तो देन मार्केट्स कैन गिव यू अ गैप फिलिंग ट्रेड. तो मैंने आपको चार सेटअप समझाए, इन चार सेटअप्स पे वर्क करना. अगर मार्केट आउटसाइड प्रीवियस डे रेंज खुल रहा है डेफिनेटली इनमें से चारों में से ही कुछ होगा. बैंक निफ्टी की बात करते हैं. तो जस्ट लाइक निफ्टी मैंने आपको बताया अपन 15 नवंबर के हाई पे ट्रेड कर रहे हैं. ऑन निफ्टी वी आर ट्रेडिंग एट 15 नवंबर हाई, मतलब जो हाई 15 नवंबर को था मार्केट का, आज we have approached that level. Now let us talk about Bank Nifty. And अगर मैं Bank Nifty की बात करूँ तो Bank Nifty has given a good closing today. The closing is good, but the candle is not that much good because candle एक दोजी candlestick है and close तो अच्छे level पे हुए हैं अपन Bank Nifty पे, but still the candle is showing indecision. तो अगर आज का हाई ब्रेक होता है, अगर आज के दोजी का हाई या लो ब्रेक होता है, that will give a good momentum to the markets. अब यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट एरिया मार्क कर रखा है. अब ये एरिया इम्पॉर्टेंट क्यों है पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ. एज सुन एज अपन ने जब ये लेवल ब्रेक किया था, सॉरी 12 अक्टूबर को, तो एक बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिली थी बैंक निफ्टी में. उसके बाद जब मार्केट्स प्लंज हुए वापस से तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला 29 अक्टूबर को. उसके बाद फिर से एक अच्छा सपोर्ट मिला 11 नवंबर को. देन अपन ने जब फोर्थ अटेम्प्ट में इसको ब्रेक किया, थर्ड में जब इस लेवल को ब्रेक किया तो एक बिग फॉल हुई मार्केट से. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 2 months वी हैव क्लोज्ड अबव दिस लेवल. दिस इज अगेन अ पॉजिटिव साइन. अब मैं आपको बता देता हूँ 15 नवंबर पे आज निफ्टी बंद हुई है, जहां 15 नवंबर पे निफ्टी का हाई था 2 मंथ पहले, और 15 नवंबर पे बैंक निफ्टी का हाई इट वाज अराउंड दिस लेवल. एंड लेट मी टेल यू द हाई ऑफ दिस लेवल इज 39,117. तो अगर आज का हाई ब्रेक होता है बैंक निफ्टी का, यू हैव टू लुक फॉर द लेवल ऑफ 39,100 प्लस टुमारो इन बैंक निफ्टी. अब मैंने आपको रीजन भी बता दिया क्यों. जो निफ्टी है वो 15 नवंबर के हाई के पास ट्रेड कर रही है एंड बैंक निफ्टी जस्ट बिलो दैट. तो बैंक निफ्टी इज ऑल्सो ट्राइंग टू कवर. जैसे जैसे निफ्टी आगे बढ़ती जा रही है बैंक निफ्टी भी उसके साथ साथ आगे बढ़ती जा रही है. निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास है एंड बैंक निफ्टी भी ट्राई करेगी कि इट विल गो मच हायर एंड ट्राई टू कवर दैट पेस. ठीक है, निफ्टी का पेस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रहा है पिछले एक दो हफ्ते से. इफ यू टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ट्राइंग टू कवर दैट पेस. तो ये जो 15 नवंबर का हाई है, दिस इज समथिंग दैट वी कैन हिट टुमारो अगर आज का हाई ब्रेक होता है तो. दिस इज अ लेवल दैट यू कैन मार्क. ये लेवल है जो आप मार्क कर सकते हो. और अगर आज का लो ब्रेक होता है बैंक निफ्टी की आज की कैंडल का, देन डेफिनेटली एक गैप फिलिंग मूव आपको मिल सकती है. बैंक निफ्टी पे आज एक रेंज बाउंड सेशन था और एक दोजी बना है. अब ये सिंपल सा मैंने आपको चार्ट दे दिया है, बहुत ही सिंपल है. नीचे का आपको लेवल मार्क करके दे दिया है जो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा. ऊपर का मैंने आपको टारगेट भी मार्क करके दे दिया है कि ये तो आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, ठीक है. एंड इंस्टेंटली अगर ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो आप ट्रेल कर सकते हो फर्दर लेवल्स के लिए.
अब आज एक दोजी बना है बैंक निफ्टी के चार्ट पे, तो व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू प्ले अ सिंपल गेम। आज की कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, वी आर सस्टेनिंग बिलो दैट, दैट मीन्स एक गैप फिलिंग मूव जो आज गैप रह गया था वो फिल होगा। अगर आज का हाई ब्रेक हो रहा है, यू जस्ट हैव टू प्ले अ डे हाई ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ ट्रेंड, जो कि रोज अपन खेल रहे हैं बैंक निफ्टी में पिछले कुछ दिनों से। अब आज की ये रेंज मार्क कर दो आप, ये आज बहुत ही अच्छा सपोर्ट है और ये आज बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस है। और कल एक चीज का ध्यान रखना, कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको जिस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आईटी स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं कल, देन बैंक्स माइट रिमेन साइडवेज टू बियरिश, ठीक है। और अगर आईटी स्टॉक्स बियरिश रह रहे हैं कल, प्रॉफिट बुकिंग आपको आईटी स्टॉक्स में मिल रही है, तो बैंक्स में मनी फ्लो करेगी एंड बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देगी आज के हाई का। मेरे हिसाब से आपको एक ट्रेड मिल सकती है, मैं आपको बता देता हूँ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। बस ये एक एक्सपेक्टेशन है, एक सिनेरियो बता रहा हूँ आपको, एक एनालिसिस बता रहा हूँ एंड नॉट फोकास्टिंग अबाउट द मार्केट्स। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि व्हाई आई हैव यूज दैट कोट टुडे, मैंने वो क्यों पोस्ट की है, द रीजन आई विल बी टेलिंग यू आउट दैट ऑल्सो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन भी बनेगी ऐसे करके। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि आपको कल बैंक निफ्टी में यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ये सपोर्ट टेस्ट हो जाते हैं पर ब्रेक नहीं हो पाता है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखता है ना, तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बाय करना, फर्स्ट टारगेट अपना इस रेंज का हाई रखना। क्योंकि अपन रेंज में है तो एक रेंज बाउंड ट्रेड प्ले कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट दे रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट आपका रेंज होगा, ये ब्रेक हो रही है तो ये सेकंड टारगेट होगा। ये एक बहुत अच्छी ट्रेड आपको मिल सकती है कल, जस्ट बिकॉज आई थिंक कि ऐसा हो सकता है कल, मैं आपको ये एक ट्रेड सेटअप बता रहा हूँ। बाकी तो आपको सिंपली कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आज का रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन प्ले करना है। दैट विल बी द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन द मार्केट्स टुमारो। अब why I have used that theme for today कि as a trader you have to do analysis and not forecasting, just because कि आज TCS ने बायबैक अनाउंस किया है, इन्फोसिस ने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, विप्रो ने गुड रिजल्ट्स दिए हैं, लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट फोकास्टिंग। TCS ने 4,500 पे बायबैक किया, अब TCS का भाव 5,000 जाना चाहिए। इन्फोसिस का रिजल्ट ऐसे है, अब इन्फोसिस का टारगेट 2100 आ जाना चाहिए। सी गाइज, ये जो टारगेट देने का काम है एंड वट एवर द बिजनेस ये जो है जिसमें लोग टारगेट देते हैं, कोई स्टॉक यहाँ तक जा सकता है, इट्स अ ब्रोकरेज बिजनेस, ठीक है। ये एफआईज और बिग प्लेयर्स, प्रोप्राइटरी डेस्क, ये लोग करते हैं एंड यू शुड नॉट बी फॉलोइंग दैट। आपको वो सब चीजें फॉलो नहीं करनी चाहिए, वो सब एनालिसिस फंडामेंटल पैरामीटर्स पे होती है एंड टेक्निकली आपको कुछ फायदा नहीं देगी। मतलब अगर कोई ब्रोकरेज फर्म कल सुबह इन्फोसिस का टारगेट दे देती है 2500, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको कल इंट्राडे में बेनिफिट देगा। इंट्राडे में इन्फोसिस कल 2500 नहीं हिट करेगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग कि अगर कोई ब्रोकरेज फर्म 2500 का टारगेट भी दे देती है इन्फोसिस पे, स्टिल जरूरी नहीं है कल वो इंट्राडे में पड़े। मे भी ऐसा हो सकता है कि वो गिर जाए एंड लेटर ऑन वो 2500 का टारगेट बाद में एक साल बाद पूरा कर दे। तो what you have to do is focus on the analysis, focus on the price action scenarios. Besides that, ये जो forecasting वाला काम है आपको बंद कर देना चाहिए, just because इससे आपको लॉस होगा। I want to protect you from these things. ये सब आपको ट्रेडर mentality, ट्रेडर माइंडसेट से दूर कर रहा है। Please don't focus on these things. Talking about TCS, I will just say one thing. एक बहुत ही सिंपल थिंग मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी। TCS ने आज बायबैक अनाउंस किया। पहली बात तो मैं आपको ये उस समय पे ले जाता हूँ चार्ट के, जब TCS ने अपना लास्ट बायबैक अनाउंस किया था, क्या हुआ था। आई थिंक ये वो कैंडल है जब TCS का लास्ट बायबैक अनाउंस हुआ था एंड इस दिन TCS ने एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बनाया था और उसके बाद इफ यू सी तो TCS नीचे ही गया था। शॉर्ट टर्म में अगर आप TCS की कॉल्स बाय करते, फ्यूचर्स बाय करते, तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे आ गया था ये 2600 के पास, फ्रॉम अराउंड द लेवल ऑफ 2885 के हाई से 2600 आ गया था शेयर। तो 10% तो ये पहले गिरा था, उसके बाद ये बढ़ा था। तो दिस इज समथिंग दैट कैन हैपन इवन आफ्टर बायबैक। और ऐसा ही नहीं कि ये TCS में होता है, बायबैक के बाद बहुत बार स्टॉक्स पहले गिरते हैं उसके बाद बढ़ते हैं। तो प्लीज डोंट मेक अ सिनेरियो इन योर माइंड कि अब 4,500 पे बायबैक हो गया तो सिर्फ बढ़ सकता है, बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है, दोनों चीजें हो सकती है।
ऑन द बेसिस ऑफ दैट अपन को पता है कि दोनों चीज हो सकती है, तो वी विल बी थिंकिंग अबाउट बोथ द सिनेरियोज, दोनों सिनेरियोज के बारे में सोचेंगे कि अगर ऐसा हो जाता है तो अपन को सेल करना है, ऐसा हो जाता है तो बाय करना है। फर्स्ट थिंग, टीसीएस की न्यूज पॉजिटिव है तो लाइकली मोर चांसेस हैं कि गैप अप करेगा स्टॉक, बिकॉज बायबैक की न्यूज से पिछली बार भी गैप अप हुआ था, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इस बार भी पॉजिटिव न्यूज की वजह से गैप अप हो सकता है। दिस इज द ऑल टाइम हाई ऑफ टीसीएस। ठीक है, यहाँ से एक रिजेक्शन आया था 10th जनवरी को, जो कि मंडे था। उसके बाद एक ग्रीन एंड अगेन अ रेड कैंडल। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट थिंग, अगर मार्केट आज की रेंज के बाहर खुल रहा है, आज की रेंज के बाहर खुल रहा है, ठीक है, ये आज की रेंज है, इसके बाहर खुल रहा है, तो दो तरह के सेटअप्स बनते हैं मार्केट पे। अभी मैंने आपको निफ्टी पे बताए थे 3-4 तरह के सेटअप्स, उन सेटअप्स को आप फॉलो करो। डेफिनेटली दिस इज समथिंग दैट विल गिव यू रिजल्ट इन द मार्केट्स टुमारो। अगर आपको कल टीसीएस पे ट्रेड करना है तो सिर्फ इस चीज को फॉलो करो एंड डोंट ट्राई टू फोकस द मार्केट। अगर वी आर ओपनिंग आउटसाइड टुडेज डे रेंज, अगर अपन इस रेंज के बाहर खुलते हैं, देन व्हाट यू हैव टू सी, यू हैव टू सी द फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल को देखो, अगर फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल है एंड उसका कोई फॉलो अप नहीं आ रहा है, उसका कोई फॉलो अप नहीं आता, इंस्टेड वी आर एबल टू ब्रेक द हाई ऑफ दैट कैंडल, देन यू शुड लुक टुवर्ड्स अ बाइंग साइड ट्रेड। ठीक है, इफ द फर्स्ट कैंडल इज अ रेड कैंडल एंड फॉलो अप आता है, देन ट्राई टू सेल ऑन राइज। अगर फर्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल है, उसका भी फॉलो अप आ रहा है, ट्राई टू बाय ऑन डिप। इफ द फर्स्ट कैंडल इज ग्रीन बट इट्स लो इज ब्रेकिंग, ठीक है, एंड इट इज आउटसाइड प्रीवियस डे रेंज, देन ट्राई टू प्ले द गैप फिलिंग ट्रेड। तो एक गैप फिलिंग ट्रेड होगी। दिस इज समथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू। चार सिनेरियोज बता रहा हूँ जो मैंने आपको निफ्टी बताए थे, आउटसाइड प्रीवियस डे रेंज अगर मार्केट खुलता है तो। अब अगर मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर खुलता है, द ऑल टाइम हाई इज 3989, अगर मार्केट 4000 के ऊपर खुल जाता है, तो दो चीजों पे फोकस करना। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे खुल रहा है एंड इवन आफ्टर ओपनिंग अबव ऑल टाइम हाई मार्केट इज एबल टू गिव यू अ फॉलो अप, मतलब फर्स्ट कैंडल ग्रीन बन रही है, सेकंड कैंडल ग्रीन बन रही है, देन इट विल बी क्लियर दैट दिस लेवल which was a resistance earlier can now turn into a support and short term trend जो है टीसीएस का वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मैंने आपको प्राइस एक्शन सिनेरियोज बनाए टीसीएस के। लेट्स टॉक अबाउट इन्फोसिस। इन्फोसिस का इफ यू सी द प्राइस एक्शन, तो देर आर डिफरेंट कैंडल्स इन टीसीएस। टीसीएस आज 1% नीचे था, ठीक है, एंड इन्फोसिस आज 1% ऊपर था। इन्फोसिस वॉज फार मच बेटर देन टीसीएस टूडे। अब इन्फोसिस ने इस लेवल का रीटेस्ट दिया अपन को, पहले यहाँ से ब्रेकआउट किया, फिर इसका रीटेस्ट दिया और अब ऊपर जा रहा है। इन्फोसिस रिजल्ट्स आर आल्सो गुड। बस अब ये देखना है व्हाट यू हैव टू सी टुडे कि मार्केट, वो चार सिनेरियो तो आपको हमेशा फॉलो करना है। इफ मार्केट इज ओपनिंग आउटसाइड प्रीवियस डे रेंज, अगेन अगर मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर खुल जाते हैं इन्फोसिस में, व्हाट यू हैव टू सी, यू जस्ट हैव टू मार्क दिस लेवल, इस लेवल को मार्क रखो। एंड अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर खुल रहा है, इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, कल पहली कैंडल यहाँ खुल रही है, ब्रेक कर रहा है और फॉलो अप दे रहा है, देन यू हैव टू लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर मार्केट इसके ऊपर खुल रहा है एंड पहली कैंडल रेड बन रही है और नीचे आता जा रहा है, देन इट विल मोस्ट प्रोबेबली बी अ गैप फिलिंग ट्रेड। विप्रो की बात करें तो विप्रो, लेट अस सी ऑन द 1 डे टाइम फ्रेम, तो विप्रो इज अगेन अपोजिट ऑफ इन्फोसिस। इन्फोसिस में यहाँ से इस लेवल का रीटेस्ट आ रहा है और फिर अपन ऊपर जा रहे हैं। अगर विप्रो को देखोगे तो विप्रो में ऑल टाइम हाई के लेवल पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहे हैं। तो अगर तीनों आईटी स्टॉक्स देखोगे तो तीनों का प्राइस एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि हो सकता है तीनों में अलग अलग तरह की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मूव्स होए। बट ये आपको फोकस में रखना पड़ेगा कि स्टॉक आज की रेंज में खुल रहा है या आज की रेंज के बाहर खुल रहा है। अगर आज की रेंज में खुल रहा है स्टॉक, देन आज के हाई और लो को मार्क कर लो, एंड जहां भी ये टूटेगा एक मेजर मूव होगी स्टॉक में उस लेवल। तो बस आपको व्हाट यू हैव टू लुक फॉर इज टू मेक प्राइस एक्शन सिनेरियोज। 4-5 प्राइस एक्शन सिनेरियोज रखो दिमाग में, एंड जैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग प्राइस के साथ फ्लो करो अपने पैसे को। डोंट ट्राई टू फोकस द मार्केट। ये सब मत सोचो कि रिजल्ट अच्छा है उस हिसाब से बढ़ जाएगा, उस हिसाब से गिर जाएगा। एनीथिंग कैन हैपन टुमारो, वी डोंट नो। ओके, बस जस्ट फोकस ऑन दैट कि अगर आईटी का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, देन बैंक निफ्टी
will try to remain sideways tomorrow क्योंकि पहले ही गैप अप होएगा मार्केट. एंड इफ आईटी का ट्रेंड वीक रहेगा तो मे बी यू विल बी गेटिंग अ गुड बाय साइड ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी tomorrow. So please focus on my words. This video was just to explain you that don't forecast the markets. Better try to analyze. And जब आप analyze करोगे तो आपकी probability बढ़ जाएगी, आपकी winning probability बढ़ जाएगी. And आप उन चीजों से दूर हो जाओगे कि यार buyback था and still ये नहीं बढ़ रहा. Please don't try to find reasons. Please don't try to blame the market for your mistakes. Always try to analyze. एक SL रखो, target रखो, and trade based on that. As a trader, you should not be focused on doing forecasting. Thank you guys. I hope that you are able to learn something from this video. Have a nice day, guys.